intergovernmental institution for the use of microalgae spirulina through spirulina initiatives that have a special priority for the developing and the least developed countries, is committed for the same. The microalgae spirulina, not only because of high nutritional components, but also other factors such as an easy availability, accessibility, affordability, and assimilation in human body where the other supplements fail, holds significant potential to realize a world free of hunger and malnutrition and achieve the United Nations Millennium Development Goals. And each one of us that is present here would be an agent to realize and accomplish our mission of a world free of hunger and malnutrition. Thank you. Muchas gracias. The more we study, the more we fall in love into spirulina. Oh, it's very good food, you know. We say that Ganoderma and spirulina, maybe Ganoderma is a king, then spirulina must be the queen. And when these two combine together, we have perfect food. That's why now we have so many beautiful testimony when these two are combined together. Ganoderma and spirulina is not my food supplement, it's my main food. You must take Ganoderma, you must take spirulina, because they are more potent than vegetable. They are more important than vegetable. Assalamu alaikum. Good morning, DXN. How are you all? Today we have very special session. But इस session को start करने से पहले I would like to add something that fortunately, we are going to do a very big task, DXN, with the collaboration of IMSAM. Basically, साइंस को हम बाईपास नहीं कर सकते. साइंस को हम बाईपास नहीं कर सकते. अगर हम साइंस को बाईपास करते हैं, टेक्नोलॉजी को बाईपास करते हैं, तो इट वुड बी लाइक जो सैमसंग के साथ हुआ. सैमसंग ने जो नोकिया के साथ किया, सॉरी, जो सैमसंग ने नोकिया के साथ किया. तो लॉट ऑफ थिंग्स कम, टेक्नोलॉजीज कम, इनोवेशंस कम, साइंस कम, एवरीथिंग इन्वॉल्वमेंट, बट देयर आर सर्टेन थिंग दैट वी कैन नॉट बाईपास. इस पॉइंट को माइंड में रखते हुए हमारे डॉक्टर लिन सियाओजिन ने एक प्रोजेक्ट का स्टार्ट किया है, जिस प्रोजेक्ट के अंदर वी आर गोइंग टू हेल्प 1 मिलियन चिल्ड्रन. अच्छा, मैं 1 मिलियन चिल्ड्रन बोलूं या मैं 1 मिलियन नीडी पीपल भी बोल सकता हूं. 1 मिलियन लोगों को हम हेल्प करेंगे विद द हेल्प ऑफ सुपर फूड. एक सुपर फूड की रेफरेंस से हेल्प से हम 1 मिलियन लोगों को हेल्प करेंगे. कोलैबोरेशन किसके साथ होगी? IMSAM के साथ होगी. बेसिकली IMSAM is working in the world since 2001, 12 June 2001. बेसिक इसका टास्क है, इनके प्रिंसिपल्स क्या है? जहां भी फूड की किल्लत होती है, माल न्यूट्रिशन जहां पे होती है, वहां पे अपना काम करते हैं और दुनिया के अंदर बहुत सक्सेसफुली ये काम कर रहे हैं. और यूएनओ के साथ ये एफिलिएटेड है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक के साथ ये एफिलिएटेड है और पाकिस्तान के अंदर भी ये काम कर रहे हैं. So it's our task. You can contribute in this by giving just $1. अगर आप इसमें contribute करना चाहते हैं $1 one child campaign के अंदर, you can start from $1. And for the sake of the appreciation, company will give you e-certificate that you will be appreciated. And the thing is that you will get inner satisfaction. जब आप किसी को help करते हैं तो आपको inner satisfaction मिलती है. So hopefully we are going to we have start this campaign, $1 one child. Then you can help one child with $1. It means that you can contribute just 170 rupees as per the exchange rate, and then you can redeem this value. You can also redeem this value by purchasing some specific food, some specific products. That product we will declare very soon, inshallah. Today we will have a Zoom meeting, so we will have complete exposure of this ODOC campaign. But the thing is that ये बहुत एक बड़ा प्रोजेक्ट है. इसके अंदर मैं आपको अगर बैकग्राउंड में दिखा सकूं, ये जो थीम है,
थीम यही है कि साइंस की रिस्पेक्ट से, की हेल्प से हम ह्यूमंस को सर्व कर रहे हैं। वी आर नॉट सपोज टू बाईपास दिस। अब सवाल ये है कि साइंस की मदद से क्यों कर रहे हैं? देखें, माल न्यूट्रिशन एक दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। माल न्यूट्रिशन जिसमें फूड की किल्लत की वजह से, खाने की किल्लत की वजह से लोगों की डेथ होती है, बच्चों की डेथ होती है। अफ्रीका में बहुत सारे जगह है, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया में बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं। अब इस प्रॉब्लम को स्मार्टली हैंडल करने के लिए हम सुपर फूड पे जा रहे हैं, और वो सुपर फूड है स्पारुलिना। स्पारुलिना हैज बीन डिक्लेयर्ड द सुपर फूड इन दिस वर्ल्ड। स्पारुलिना एक सुपर फूड है, इसके अंदर बिग क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, सब चीज इसके अंदर है। So with the help of this product, we are going to help 1 million people, and this campaign has been already started. So I think this was the overview of $1 1 Child campaign. अब अपने प्रोग्राम का बकायदा आगाज करते हैं। ट्रांसपेरेंसी टॉक एपिसोड 4, और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, अच्छे गेस्ट हैं, बहुत एफर्ट करने वाले लोग हैं, और वो कहते हैं ना, जो हथियार ना डालने वाले लोग हैं, वो लोग आज हमारे साथ हैं। तो मुझे फॉर्मेलिटीज तो करनी आती नहीं, बस इनको ले ले भाई, ऑनर ले लें प्लीज। ओह, अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। राम भैया, हाउ आर यू? Yeah, I'm great. Good morning, Ram Bhaiya. Shining, both of you shining. Thank you. So, madam, first of all, I would like you to introduce yourself. और अपने आप को बताएं, आप कौन है, क्या करती हैं, रिएक्शन में क्या कर रही हैं, और आगे आपने क्या करना है, खुद अपने इंट्रोडक्शन में। Assalamu alaikum and good morning, everyone. Good morning, my DXN family. And thank you, Masih Bhai, for inviting me for this good, nice session. राम भैया के साथ, और मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि राम भैया के साथ एक सेशन मेरा हो, because he has a very motivating personality, और मजा आता है इनके साथ बैठने, इनके साथ बात करने में। तो मैं कहती हूँ कि मेरी गुड लक है कि राम भैया आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में, इस सेशन में शामिल हैं। तो रहा सवाल मेरा इंट्रोडक्शन का, थैंक यू राम भैया फॉर कमिंग। रहा सवाल मेरा इस सेशन DXN ज्वाइन करने का, तो बेसिकली मेरा इंट्रोडक्शन यूं है कि मैं एक बिजनेस वूमन हूँ, और मैं अपने फादर की कंपनी को रन करती हूँ फॉर द लास्ट 25-30 years। मेरे फादर जो हैं वो DXN की टेस्टिमनी थे, और उनको कैंसर था, और DXN जब मैंने 2016 में DXN ज्वाइन किया, उसकी वजह ही जो था मेरी फादर की बीमारी थी। और जब मैंने इसको ज्वाइन किया है, और जब मैंने DXN प्रोडक्ट्स उनको देने लगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ लें तकरीबन मैं 1 साल तक उनको दे रही थी। और इस प्रोडक्ट की वजह से, इट्स मिरेक्युलस प्रोडक्ट्स आई शुड से, और ये हम सब के लिए इतनी गुड लक है कि अल्लाह की रहमत से ये हुआ कि मेरे वालिद को कलमे की मौत अता हुई। और कुछ उनकी बीमारी के दौरान की मैं आपको 1-2 बातें मैं आपको उस पर बताऊं कि जब ये हुआ था, क्योंकि लास्ट 6 days में उनका जो हेमोग्लोबिन था वो 9.1 था, तो 9.1 से 10.4 हुआ, और ये स्पिरुलिना की बदौलत, क्योंकि उनका ब्लड लॉस हो चुका था, एंड उनको साथ प्रॉब्लम ये था कि उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी नहीं दिया जा सकता था, ना आयरन टैबलेट्स दिए जा सकते थे, क्योंकि डेल्टा कॉर्टिल स्टीरॉयड ले रहे थे, और इनके जो है छाती में, लंग्स में जो है वो इन्फेक्शन होता था उससे, तो ये पॉसिबल नहीं था करना। तो 18 टैबलेट्स स्पिरुलिना की मैं उनको देती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका हेमोग्लोबिन जो है वो इम्प्रूव होने लगा। अच्छा, साइड इफेक्ट था डेल्टा कॉर्टिल स्टीरॉयड का कि उनको डिमेंशिया था, यादाश्त उनकी, मतलब बहुत सी चीजें वो भूलते थे, मगर उनके आखिरी दिनों में जो है उनकी यादाश्त भी बेहतरी के तरफ आई। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, ये जो ब्लॉकेज उनको था, एक साइड इफेक्ट इसका स्टीरॉयड का ये भी था कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता था, यानी कि ब्लॉकेज हो जाता था आपकी वेन्स के ऊपर। तो ऋषि मैं उनको देती थी मेगा थेरेपी, मैंने डैडी को मेगा थेरेपीज दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे ये फायदा हुआ कि उनको जो है ब्लड थिनर्स की जरूरत नहीं पड़ी।
अल्हम्दुलिल्लाह जब उनका वक्त आया जाने का तो आधे घंटे पहले मैं उनके साथ थी, और कुछ इस तरह से हुआ कि जो मॉनिटर था वो बहुत ज़्यादा हाई जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो हेवाई शो कर रहा था, डिस्टर्ब था, और उनका जो हार्ट बीट भी था वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। उस हालत में उन्होंने ये कहा, मुंह पे उनके बाय पे, आप सोच लें कि आखिरी वक्त जो होता है बड़ा इस्तराबी होता है, उस हालत में वो मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे वुजू कराओ, मुझे नमाज पढ़ना है। और उन्होंने रकत बांधी, मैंने तयम्मुम करवाया उनको, और उन्होंने रकत बांधी, एक रकत पढ़ी और दूसरे रकत के बाद वो कोमा में चले गए। 3 महीने के बाद जब मैंने इसको सोचा, मैंने कहा व्हाट मेड हिम डू दैट। हम अल्लाह ताला से कहते हैं या अल्लाह तो हमें कलमे की मौत अता फरमा, तो ये कैसे होगी? ये उसी वक्त होगी ना जब आखिरी वक्त पे, जब पैनिक सिचुएशन, आपकी एक बायोलॉजिकल केमिकल डिस्टर्बेंस आपकी बॉडी में चल रहा होता है, जब आप आईसीयू में होते हैं, उस सूरत में अगर आपके हवास हाजिर हैं तभी आप अल्लाह को याद कर सकते हैं। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है और DXN प्रोडक्ट्स की है, क्योंकि 60% उनकी जो बॉडी थी वो एल्कलाइन हो चुकी थी, क्योंकि ये जो DXN की प्रोडक्ट्स हैं ये एल्कलाइन फूड है, ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर है और ये डिटॉक्सिफायर है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा दें तो आपको ये बेनिफिट्स इसमें मिलेंगे। तो जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, एक तो उनको कलमे की मौत हुई, और मैंने इस चीज से रियलाइज किया कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है, और अल्लाह ताला ने इससे हमें अपना हर बीमारी का एक एंटीटोड बता दिया है। तो आज जब कोई हमारे सामने कोई पेशेंट अगर खड़ा होता है, कहता है मुझे कैंसर है या मुझे डायबिटीज है या कोई मसला है, तो अल्लाह की रहमत यह है कि हमें पता है अल्लाह हैज गिवन अस हिज एंटीटोड, एडवाइज अस, तो हम इससे इलाज बिल ग़िज़ा यानी ज्ञानोथेरेपी के थ्रू मशरूम एंड हर्ब से हम उसका इलाज कर सकते हैं और वो बेहतरी के तरफ आ सकता है। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इंसान वसीला है, मगर इस जरिए से बहुत अच्छा ये हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो मुझे ये हुआ कि मैं अपने वालिद को नहीं बचा सकी, अल्लाह की मर्जी है इसमें, और मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई जो, क्योंकि मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। तो उस वक्त मैंने एक इरादा किया कि मैं जी, आप लोग को आवाज आ रही है? आवाज आ रही मैडम? यस। ओके, नहीं बीच में डिस्टर्बेंस है। उस वक्त मैंने इरादा किया कि मैं अपने वालिद को तो नहीं बचा सकी, मगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनको मुझे हेल्थ सोल्यूशन बताना है। और उस वक्त मेरी अल्लाह से ये दुआ थी, अल्लाह तेरी इस धरती पे जो है ना, जो जिस तरह से शिफा मिल सके या अल्लाह तू दे दे, और DXN के वसीले से जैसे तूने मेरे वालिद की मदद की, या अल्लाह तुम सब लोगों की मदद कर। और मेरा यही मकसद है इसको DXN को करने का, टू सर्व द ह्यूमैनिटी, लोगों की ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको बताना, और ये मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है। और ये है कि मैं ये कहती हूँ कि जो मैं काम करती हूँ, जो बिजनेस मैं करती हूँ, वो मेरे वालिद साहब की अमानत है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और DXN मेरा पैशन है टू सर्व द ह्यूमैनिटी, एंड इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हाना ताला एंड माय फादर, कि जिनकी वजह से मुझे ये DXN का फोरम मिला, एंड डॉक्टर जिन का इसमें बहुत बड़ा हम सब पे एहसान है कि इन्होंने इतनी मेहनत करके वंडरफुल प्लेटफॉर्म हमें दिया है, वंडरफुल प्रोडक्ट्स हमें दिए हैं। अब सब कुछ बना बनाया निवाला मिल जाए, सब कुछ अच्छा मिल जाए और बंदा ना करे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बात है। तो ये मेरी इसमें लोगों से भी यही होगी, दरख्वास्त होगी और लोगों से ये कि DXN जब ज्वाइन करो तो DXN को छोड़ो नहीं। मुश्किल वक्त आएंगे, डिफिकल्ट टाइम्स होंगे, दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात है और हमें बस वो ढूंढना है रास्ते। वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स, वी हैव टू लुक फॉर द वेज। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप भी कर सकते हैं। मैडम माशाल्लाह आपकी स्टोरी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और ऐसा ये आपकी स्टोरी सुनने के बाद तो मेरी यही फीलिंग है, अगर आपको कोई शेक भी करना चाहे तो इट्स नॉट पॉसिबल। यू आर वेरी फर्म, बिकॉज जो बॉन्ड है, जो पीछे आपने बॉन्डिंग स्टोरी बताई, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, रियली इंस्पायरिंग, आई मस्ट से। थैंक यू। अच्छा,
Ram Bhaiya, where is Ram Bhaiya? Ram Bahadur Tamang, where is he? I think some technical issue. Yeah, looks like. Okay, he's come back. Hi, Mr. Ram Bahadur Tamang. Hi, namaste जी. Namaste. Where were you? कहाँ थे आप? एक्चुअली कल आगे डिस्टर्ब कर रहा था ना, तो मैं लीव होकर फिर इन किया. आप हमको बताइए कि आप डीएक्सन में कैसे आए और क्राउन डायमंड कैसे बन गए. ये बहुत बड़ा काम आपने कर दिया डीएक्सन के अंदर. तो ये कैसे आए, कैसे हो गया ये बताइए. Okay. First of all, I would like to happy good morning DXN Pakistan. Good morning. And I would like to thank you very much for believing me that and give me this opportunity. ये opportunity दिया है आप लोगों ने. मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ DXN पाकिस्तान और आप लोग सभी को, और दीदी को नमस्कार बोलना चाहता हूँ. नमस्कार. ओके, आपको बहुत याद किया है मैंने. ओके, तो एक्चुअली मैं कैसे क्राउन डायमंड बन गया. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे डीएक्सन का जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, इसका सिस्टम ही बेस्ट है. अगर मैं आज क्राउन डायमंड बन गया हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास इतना ज्यादा चीज तो है ही नहीं है. राम भैया बेसिकली सेलफोन की वजह से डिस्टरबेंस है, तो आप लोग अपने सेलफोन में अगर आप लोग लाइव है ना, तो उसको क्लोज कर दीजिए. नहीं था मैडम, आपने सेलफोन अगर आपने ऑन किया हुआ तो सेलफोन को क्लोज कर दीजिए. नहीं, मेरे पास कोई सेलफोन नहीं है. आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन द शो. मेरे पास कोई नहीं, कुछ आपके पास नहीं. मैं तो अकेले हूं. आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है या इस पे डिस्टॉर्शन है? माइंड राम भैया की थोड़ी जरा डिस्टर्ब्ड है आवाज जो है. ओके, सो I will leave and come back again. डिस्टॉर्शन है आपकी आवाज के साथ, डिस्टॉर्शन भी आ रही है जी. मालूम नहीं. अभी सही है. अभी सही है. अभी सही है. अभी सही है. नहीं, अभी भी डिस्टर्ब हो रहा है. ओके, बेटर मैं लीव होकर आता हूँ. ओके, ठीक है. और तो मैडम आप मुझे ये बताइए, आई हैव वन वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन विद यू. मैडम जी, very critical question with you. अच्छा जी. We are transforming our system totally to the internet side, e-commerce side. जी. In that scenario, इस scenario के अंदर you are the only person in Pakistan जो 2 सर्विस सेंटर रन कर रही हैं. तो will it be typical for you? किस तरीके से तो 2 सर्विस सेंटर पे काम आप ऑलरेडी कर रही हैं, ये भी पूरा आईटी पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, परचेजिंग आपके इंटरनेट से हो रही होगी, ई-कॉमर्स से हो रही होगी. सो हाउ विल यू सर्वाइव? मसी भाई देखिए, मैं अपना काम जो भी करती हूँ वो काम को एंजॉय करके करती हूँ, तो मुझे कोई भी काम जो है वो भारी नहीं लगता. एंड अपनी विल होती है, इसमें अपना इंटरेस्ट होता है. जब आप किसी काम को हावी करेंगे तभी वो आपको भारी लगेगा, मगर आप जब अपने किसी काम को दिल से करेंगे और उसके अंदर पूरी तरह आप समा जाएंगे तो वो काम आपको कभी मुश्किल नहीं लगेगा. हाँ, मुश्किल वक्त आते हैं, बट वो लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस. 2 सर्विस सेंटर रन करना सुनने में तो ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, बट द थिंग इज कि मैं अगर कर रही हूँ तो मेरे साथ जो लोग कर रहे हैं, मेरे स्टाफ जो है माशाल्लाह, दे आर ऑल्सो वेरी मच हार्ड वर्किंग, मेहनती लोग हैं. तो जब आपके पास अच्छी टीम हो तो इसको करने में कोई मुश्किल नहीं है. तो और दूसरी चीज ये है कि सर्विस सेंटर्स अपना होना, इसका बहुत बड़ा फायदा है कि आपको जो है एक्सेस टू द प्रोडक्ट्स आपको बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है. आप ट्रेनिंग्स दे सकते हैं, यहाँ पे वर्कशॉप्स कर सकते हैं, आप बहुत सारी लर्निंग्स लोगों को दे सकते हैं.
अब मेरे सर्विस सेंटर्स में जो है नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद सर्विस सेंटर है, दूसरा डिफेंस सर्विस सेंटर्स है। तो यहाँ पे हम जो है लोगों के लिए एंटरटेनमेंट भी रखते हैं, यहाँ पे हम लर्निंग्स भी रखते हैं। एक फैमिली फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है एंड इट इज ओपन फॉर ऑल मेंबर्स। यहाँ पे मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है और कौन सी टीम का है। सर्विस सेंटर, आई टेक माई सर्विस सेंटर्स एज इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग अबाउट DXN ट्रेनिंग। फ्री ट्रेनिंग है, जिसको सीखना है सीखो, जिसको डिफिकल्टी है आओ आके बात करो, समझो उसको। न्यू प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको है, लीडर्स को है, किसी को भी है, तो यहाँ पे आके सीख सकते हैं और हमसे जितना हो सकेगा हम इंशाल्लाह हेल्प करेंगे इसमें। और यही मकसद था DXN सर्विस सेंटर्स को खोलने का। दो और मौके मिलेंगे इंशाल्लाह और खोल लेंगे। So what is your कन्विंसिंग पावर? आपकी एक कन्विंसिंग पावर क्या है कि आप किसी को बिजनेस के लिए जब आप सर्विस सेंटर का बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगी, तो व्हाट इज योर कंपेटिटिव एज? क्या चीज आप बताएंगे लोगों को? सर्विस सेंटर का देखिए, सर्विस सेंटर्स जो है हम लोगों को ज्वाइन तो करवा देते हैं। ज्वाइनिंग प्रोस्पेक्ट्स बनाना, ज्वाइनिंग करना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप ना बताएं तो भी बंदा ज्वाइन हो जाता है। क्या करना है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी पकड़ लेते हैं बंदे की, उससे फॉर्म साइन करवा लेते हैं। लोग इस तरह से भी करते हैं। बट द थिंग इज के बाद जो है ना, वो टीम्स को लोड करना नहीं है, अपनी डाउन लाइन में टीम्स को लोड करना नहीं है, टीम्स को सिखाना है। तो सिखाने के लिए कोई एक अच्छी जगह चाहिए आपको, कोई अच्छा एनवायरनमेंट तो चाहिए कि जहाँ पे बंदा बैठे, जहाँ पे सीखे, वो जहाँ पे उसको आना अच्छा लगे, लाइक अ क्लब, लाइक एन इंस्टीट्यूट। तो इस तरह से वहां पे जो है फैसिलिटेट हो कि बंदा देखे कि यार वाकई में ये अच्छी जगह है, एक अच्छी एनवायरनमेंट है। क्योंकि सर्विस सेंटर जो है एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है लर्निंग का, जहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं अपने डाउन लाइन्स पे, बहुत अच्छी तरह से आप फोकस कर सकते हैं, आप लोगों को सिखा सकते हैं, आप वर्कशॉप्स वहां पे कर सकते हैं। अब मेरा सर्विस सेंटर जो है, जो नाज़िमाबाद का सर्विस सेंटर है, वहां पे मैंने एक और चीज स्टार्ट की है और माशाल्लाह उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि अभी ईद का सीजन भी है। तो वहां पे मैंने गानो एंड हर्बल रिजुविनेटिंग थेरेपी क्लिनिक स्टार्ट किया है और ये डर्मा केयर के ऊपर पे है। Basically, this is not a parlor, but this is covering all those issues with the skin. अब इसके अंदर फेशियल्स भी आ जाते हैं, आपके हैंड एंड फीट के प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे आपको जो स्किन के एक्जिमा है, हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, डैंड्रफ है, और आपके यहाँ जो जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं स्किन के, ऐसे भी अमराज जो जिल्द के अमराज हैं जिनका एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं होता, कुछ सीरियोसिस, कुछ ऐसे एक्जिमास वगैरह जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथी में, मगर यहाँ पे DXN में आके आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। तो इस क्लिनिक में जो है, जो कि सर्विस सेंटर का ही हिस्सा है, नाज़िमाबाद सर्विस सेंटर का, यहाँ पे हम डिफरेंट DXN की प्रोडक्ट से जो है हर्बल फेशियल्स करते हैं। जो एंटी एजिंग है आपकी, जो जैसे झुर्रियां आ जाती हैं, सैगिंग स्किन वगैरह है, तो उसको भी हम जो है स्किन टाइटनिंग वगैरह, क्योंकि देखें ये जो गानोडर्मा मशरूम है, अल्लाह ताला ने इसको जो मिरेकुलस हर्ब बनाया, इसकी सबसे बड़ी चीज ये कि ये आपको एंटी एजिंग की तरफ ले जाता है। तो इसकी टेक्निक्स है, ये मैंने सीखी हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टाफ को भी मैं सिखा रही हूँ। एंड इससे जो है मतलब स्किन टाइटनिंग है और आपकी एंटी एजिंग के वो हैं, और जो भी रिजल्ट्स है ना, इसमें इमीडिएट रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल टाइप ये नहीं है, और जो है और आपको कोई नुकसान नहीं है। इसके अंदर रीजनेबल रेट्स के ऊपर है, मेंबर्स के लिए भी, नॉन मेंबर्स के लिए भी। और दूसरा ये है कि जो जिल्द के अमराज होते हैं तो उसके ऊपर जो है कंसल्टेंसी दी जाती है, प्रोडक्ट्स बताई जाती हैं यहाँ पर। तो और दूसरी ये है कि मेरा खुद शौक जो है वो हेल्थ पार्ट के ऊपर ज्यादा है, एंड आई डू अ लॉट ऑफ गानोथेरेपी। मैं जो है डिफरेंट बीमारियों के ऊपर जो है क्या प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए, किस तरह से, एंड मेरा सब्जेक्ट जो है न्यूट्रिशन भी रह चुका है, तो मुझे ये सर्विस सेंटर्स रन करना, DXN करना जो है, मुझे इसमें मजा आता है एंड आई एंजॉय माय वर्क। तो आई थिंक
ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये जो आप हर जगह ये भी करो, ये भी एक्सपेरिमेंट, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। राम भैया, जी सवाल जी आपसे था 0 से CD तक का सफर, वो बताइए। हाँ हाँ ओके। तो ओके, मैं एक्चुअली DXN कंपनी का सिस्टम से बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो आदमी हर जगह में फेल है, हर जगह में पास नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं DXN में पास हो गया हूँ। तो ये सबसे बड़ा चीज है। इसको मैं मानता हूँ कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं ज्यादा स्मार्ट नहीं हूँ। कंपनी का जो सिस्टम है, जो हम लोगों का परिश्रम को जानता है, जो मानव के लिए अच्छा सिस्टम बनाए हैं दातो डॉक्टर लिमशियो जी ने, DXN कंपनी का सिस्टम ही इस क्राउन डायमंड तक पहुंचने का जगह था। और मैंने देखा कि DXN कंपनी का जो चीज है, सिस्टम है, उस सिस्टम वो आगे फेंक दे गया और मैं उसका पीछे लग दे गया, तो मैं क्राउन डायमंड तक पहुंची हूँ इसी कारण। यस। नहीं, ये अभी आप कहाँ पे बैठे हुए हैं? जी, अभी आप कहाँ पे बैठे हुए हैं? मैं घर में हूँ अभी। आपने एक बात कही है कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, और मैं खाली आपके पीछे का सिनारियो देख के बता रहा हूँ कि आप कितने स्मार्ट आदमी हैं। आपने पूरा दफ्तर इतना जबरदस्त बनाया हुआ है, वो पीछे आपकी वर्किंग, आपके वॉल, आपका ये जो स्ट्रक्चर है, चीख चीख के बोल रहा है कि आपको काम करना आता है, और आप कह रहे हैं कि आप स्मार्ट नहीं है। दैट इज अ प्योर कॉन्ट्रडिक्शन। थैंक यू। अच्छा, ये चले, आपने तो उसको स्टार्ट किया, आपको सिस्टम समझ में आया, सिस्टम बड़ा प्यारा लगा, आप इसके अंदर आ गए, आपने कहा कि अब हर जगह जो बंदा फेल है वो बंदा यहाँ पे फेल नहीं है जी। किसी भी अ पर्सन जिसके पास कुछ भी नहीं हो, करने के लिए कुछ नहीं हो, जी। तो आप क्या एडवाइस करेंगे? एज ए प्योर आपकी क्या एडवाइस होगी कि किस तरीके से DXN को स्टार्ट करना और लेके चलना है? क्योंकि यू आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल, तो आप क्या उनको गाइड करेंगे? भाई देखो, 0 अगर है तो 0 से तुमने ऐसे चलना है। कुछ लोग 0 से नहीं आते, कुछ लोग के पास रिसोर्सेज होती हैं, लेकिन कुछ लोग 0 से भी आते हैं। जो 0 से आते हैं उनको आप किस तरीके से बताएंगे? जी सर, थैंक यू। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। और हाँ जी, देन एक्चुअली इस DXN के सिस्टम में जो लोग के पास कुछ भी नहीं है, जो 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 लोग 0% में है, वो लोगों के लिए DXN में आने का, जो DXN में आने का मकसद बनता है कि आपका इरादा होना चाहिए, सिर्फ इरादा होना चाहिए। पैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इरादा तो हो सकता है ना, इरादा होना चाहिए। और अब इरादा के साथ में है, और हमेशा सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। जो व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन आपको सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास DXN में सबसे बड़ा चीज सिस्टम बनता है। ओके, तो अगर आप सिस्टम को फॉलो करते ही जाएंगे, सिस्टम क्या चीज है? सिस्टम में हमारे फाउंडर दातो डॉक्टर लिमशियो जी ने हम लोगों को ऐसा मैसेज दिया है, ऐसा नॉलेज दिया है कि जो चीज उन्होंने खुद बना के दिए, हम लोगों को इस्तेमाल करना है उसको। ये बात है नंबर 1 में। आदमी लोगों को, जो आदमी के पास 0 है, कुछ भी नहीं है, तो उसने एक एफर्ट करना पड़ता है। जो चीज है, जितना आप सकें अपना अपलाइन जो भी बोले, अपलाइन का काम है डाउनलाइन को सिखाने का। अपलाइन को फॉलो करने से पहले अपना सिचुएशन से चलना चाहिए। और DXN में वो चीज है, use the product, tell the story. First of all, when you use the product, tell the story, you will get the health benefit and wealth benefit definitely. And you have to always
follow up 3 things, then you will get 3 things. Use the product, tell the story. Utilize your wasting money, utilize your wasting time, and bring your happiness. आप खुश होके काम करना पड़ता है, इधर एफर्ट करना पड़ता है DXN में। आपके पास पैसा नहीं है तो आपको खुश होना चाहिए, आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आपको खुश होना चाहिए, और ऐसा करना चाहिए कि कुछ भी नहीं है तो हमको अपने आप पर बहुत भरोसा रखना चाहिए। Believe yourself and follow the system. Always follow the system. You will never back. Always हम लोग आगे जा सकते हैं अगर हम लोग सिस्टम को फॉलो करेंगे। ईमानदारी रहना है हम लोगों को। तो आपके पास पैसा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपके पास ईमानदारी तो है ना, है कि नहीं? तो इसलिए इस सिस्टम में, DXN के सिस्टम में, when you keep on going, sharing, caring, just sharing and caring. What is the meaning by sharing? You talk, open your mouth and talking about DXN, yeah, and then those are the things everybody can do it, and this is the things that people can make it success in DXN. This is my experience in 11 years. Yeah. जी सर जी। No, बेसिकली ये आपने बातों बातों में ये जो बात ऑनेस्टी की आपने कर दी है ना, तो इंसान के पास जो है ये डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा, आई थिंक डिस्टॉर्शन। अगर कोई सेलफोन यूज करे तो काइंडली बंद कर दीजिए। नहीं, आवाज तो सही आ रही है। तो मुझे डिस्टॉर्शन के साथ आवाज आ रही है। ओके, यहाँ पे नहीं है, मेरे पास तो कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है। डिस्टॉर्शन नहीं है, डिस्टॉर्शन इज ओनली फॉर मी। राम भैया की आवाज काफी क्लियर आ रही है और आपकी भी सही आ रही है। अच्छा मुझे, अच्छा ये जो आपने ऑनेस्टी की बात करी है ना, ये ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला ने सबको दे दिया, जो इसको यूज करके बहुत आगे निकल सकता है और इसको कोई बंदा रोक नहीं सकता। तो ऑनेस्टी तो ऐसी चीज है, इसको तो बाईपास कर ही नहीं सकता। अगर इसी को बाईपास कर दिया तो जितनी भी स्ट्रगल से कर लें, जितनी भी मेहनत कर लें, इन्वेस्टमेंट कर दें, स्मार्ट हो जाएं, एजुकेशन ले लें, टिश्यू पेपर, सब चीजें बेकार हैं। ऑनेस्टी एक बहुत बड़ी एसेट है जिससे आप बहुत आगे जा सकते हैं। मैडम और राम भैया, एक सवाल आप लोग दोनों से कॉमन है, वो ये है कि मैडम की जो थी वो इंस्पिरेशन थी, इनके फादर ने प्रोडक्ट्स यूज करी, ये कंज्यूमर बन गई, इनको कोई नहीं शेक कर सकता। आपने ये आर्गुमेंट दे दिया कि किसी को कुछ भी नहीं आता है, वो DXN कर ले, ही विल बी सक्सेसफुल, जो आपने प्रूव कर दिया जी। एक बंदा अपनी लाइफ के पैटर्न के अंदर सेटिस्फाइड है, वो अपनी लाइफ गुजार रहा है, खुश है, उसको DXN के अंदर कैसे लेकर के आना है? Okay, he has no problem with the income. Madam, he has no problem with the income. How will you bring it to him? Ladies first. मैं कहूंगी कि पहले राम भैया उस्ताद हैं, पहले इनसे सुनते हैं, फिर मैं बोलती हूँ। राम भैया आप बताइए पहले। You have been invited for this answer. अच्छा, आपका क्वेश्चंस का मतलब है जो आदमी के पास एजुकेशन है, सब कुछ है, उसको क्या करना है? पैसा भी है, सेटिस्फाई भी है, मुतमईन भी है, उसको कैसे लेकर के आएंगे DXN के अंदर? या वेरी इंटरेस्टिंग। या एक्चुअली मैं कैसे बता सकता हूँ कि मेरा थोड़ा सा मेरे पास पैसा भी नहीं था, एजुकेशन भी नहीं था, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस तो नहीं है। खैर, मैं 11 साल में इस दौड़ान में हूँ, इस बिजनेस के रनिंग में है, तो मैं ऐसा व्यक्तियों को भी मिल चुका हूँ। बहुत सारे एजुकेशन वाला और पैसा वालों से भी मैंने बहुत ही डिस्कस किया है अबाउट DXN, different DXN, how can they can use the DXN, they can come to the DXN। उनको अपना पैसा को एक साइड में रखना चाहिए, उसका एजुकेशन को एक साइड में रखना चाहिए, उसका एवरीथिंग पुट ऑन साइड एंड स्टार्ट फ्रॉम scratch, from 0 to hero. Yeah, he have to in DXN. Yes. Yes. Because is
आई एम श्योर, मुझे बहुत इस बात का मुझे बहुत विश्वास है कि जो आदमी के पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता, डीएक्सएन में ज्यादा पैसा डाल के ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता और आगे भी नहीं बढ़ सकता। लेकिन डीएक्सएन में जो आदमी के पास एजुकेशन है, उसको हिसाब करना आता है, उसके पास स्पेशली मैथमेटिक्स है, उसको पढ़ना आता है, सब कुछ आता है, तो भी उसको जीरो से आना होगा। अगर वो ये जो बंदा बोलता है कि मेरे पास सब कुछ है यार, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, if he don't follow the system of DXN, they will never become a success. Even he is a millionaire or he is a billionaire or he have a PhD certificates, that is no matter how he have, उसके पास जो कुछ भी है, लेकिन हर आदमी को जीरो लेवल से आना चाहिए। मैं ऐसा हूं वैसा हूं, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, सिस्टम को फॉलो नहीं करना है, मैं सिस्टम इस डीएक्सएन का सिस्टम से ज्यादा स्मार्ट हूं, वो तो नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा जो मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि हर आदमी को जो आपके पास है उसको साइड में रखना है और स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच इन डीएक्सएन। दैट्स ऑल। थैंक यू। एक हम टॉपिक रखेंगे, जीरो टू हीरो, इट विल वर्क। यस जी, ग्रेट। अब मैडम। अच्छा, मैं जरा कन्वेंशनल बिजनेस और डीएक्सएन बिजनेस का जो है वो आपको एक कंपैरिजन बताऊंगी जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि व्हाई वी नीड टू जॉइन द डीएक्सएन बिजनेस। अच्छा, अब सबसे पहली बात ये, आपके सामने मैं खुद एक एग्जांपल हूँ। जो मेरा अपना एक कन्वेंशनल बिजनेस है, मुझे डीएक्सएन करने की जरूरत ही नहीं है, बट ये क्यों कर रही हूँ? बिकॉज गुड हेल्थ की हर किसी को जरूरत है। अल्लाह ताला से हर इंसान दो चीजों को मांगता है, एक रोजी रिस्क, या अपने लिए मांग रहा है, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने प्यारों के लिए, ठीक है, और दूसरी अच्छी सेहत। और अल्लाह ताला इसको नवाजता है जब किसी इंसान की जुस्तजू उसको पसंद आती है। और नवाजने का तरीका ये नहीं है कि कोई जादू हो जाएगा, ये एकदम से कोई मौजज़ा हो जाएगा, नहीं, कोई ना कोई वसीला, कोई ना कोई एनवायरनमेंट इसमें क्रिएट होगा कि जिसकी वजह से आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो जब ये दुआ जो है ना, अल्लाह से हर अमीर गरीब, जिसके पास, जिसके जेब में पैसा है, जिसके जेब में पैसा नहीं है, ठीक है, जिसके पास हेल्थ नहीं है, वो हर इंसान, हर तबके का बंदा जो है वो अल्लाह से ये दोनों दुआ मांगता है। तो जब अल्लाह ताला उसको एक जरिए से नवाज रहा है, चाहे वो कन्वेंशनल बिजनेस है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम बिजनेस है, ठीक है, तो उसको इस पे एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब उसने अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ने उसको दिया किसी ना किसी वसीले से। तो अल्लाह जब आपको ये दे रहा है तो आप इसका इनकार कर रहे हो, तो फिर आप अल्लाह से क्यों मांग रहे हो? ठीक है ना। अल्लाह भी तो ये कहेगा कि तुमने मुझसे कहा कि मुझे अच्छी, अल्लाह तुम, मेरा बाप बीमार है, मेरी माँ बीमार है, उसको कैंसर है, उसका ऐसा ऐसा मसला है, ठीक है, आपको कोई डीएक्सएन का बंदा, अमीर आदमी है, उसके पास कोई डीएक्सएन का बंदा जाता है, कहता है ये तुम इलाज करवाओ, डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह शिफा है, इस वसीले से आपका फायदा हो सकता है। तो वो शख्स अगर इस बात पे उसको झड़क देता है ये कह के कि भाई आई नो एवरीथिंग, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, आई एम वेरी एजुकेटेड। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेटेड तबका है ना, वो सबसे ज्यादा बदनसीब है। बिकॉज क्या होता है कि उनके दिमाग में एक सील हो जाती है कि हमें सब आता है, दे आर ओवर कॉन्फिडेंट, सो दे डोंट हैव द डोर्स ओपन फॉर लिसनिंग टू लर्न। तो वो क्या करते हैं, वो धुतकार देते हैं। तो आपने एक तरफ तो आप अल्लाह से मांग रहे हो सेहत अपने प्यारों के लिए, दूसरी तरफ अल्लाह ने वसीला भेजा, आपने उस पर धुतकार दिया। तो आप ये मुझे बताइए, क्या ये अल्लाह को अच्छा लगेगा? फिर आपको क्या राइट है अल्लाह से दुआ करने का? अल्लाह आपकी मदद कर, आप मदद ले नहीं रहे हो, क्योंकि अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कुरान में कि मैंने तुम्हारी दुआ कबूल करनी है और उसके बाद
तुम्हें आजमाना है, जब अल्लाह आजमा रहा है तो आप फेल हो गए उसमें। दूसरी चीज ये कंपैरिजन, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको कंपैरिजन बताती हूँ। देखिए जो कन्वेंशनल बिजनेस है उसमें रिस्क है, हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। एक बॉस जो है, एक एंटरप्रेन्योर जो है, वो सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करता है, मगर जरूरी नहीं है कि उसको मुआवजा मिले रोज, ठीक है। उसको एट द एंड ऑफ द डे उसका दर्द सर है, उसको ये है कि अगर मेरे पास पैसे कमाने का जरिया प्रॉपर नहीं हुआ, आज मेरे बिजनेस में मुझे नुकसान हो गया, कल के लिए मुझे क्या तदाबीर करनी है, परसों के लिए मुझे क्या तदाबीर करनी है। एट द रेस्टिंग टाइम ऑल्सो ही इज अंडर स्ट्रेस। फिर वो अगर उसको बिजनेस में लॉस हो जाता है, देयर इज सो मच ऑफ अ कंपटीशन, वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर सकता अपने फील्ड के उस पे, क्योंकि उसको इस बात का खतरा है कि मेरा बिजनेस वो छीन लेगा। वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है लाखों की, खरबों की, और उसको जो है एट द एंड और मेहनत कर रहा है वो, मगर उसको उस लेवल का मिल नहीं रहा। डीएक्सन बिजनेस के अंदर डॉक्टर्स भी हैं, डीएक्सन बिजनेस के अंदर बिजनेस के लोग भी हैं, डीएक्सन बिजनेस के अंदर एक ट्रक ड्राइवर भी है, एक बावर्ची भी है, एक रिक्शे वाला भी है। डीएक्सन के बिजनेस के अंदर हाउस होल्ड फैमिली के लोग, जैसे कि घरेलू खवातीन, वो भी हैं, उस्ताद भी हैं, हर तबके के लोग हैं। क्यों कर रहे हैं? कुछ तो इसमें फायदा है। सबसे बड़ी बात यह है कि डीएक्सन एक गुड लक बिजनेस है। ये आपको ये आप अल्लाह ताला, देखिए हम लोग बहुत सारे लोगों को डीएक्सन में ज्वाइन करवाते हैं, मगर हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? इस वजह से कि वो इस तरह से मेहनत, इस तरह से उसको सीरियसली लेके नहीं चल रहा होता। तो जब आप कोई चीज जो आप बिजनेस करते हैं उसके अंदर आपके लिए जरूरी है कि आपकी एक पॉजिटिव थिंकिंग हो उस पर, और आपको अपने अंदर बिलीव होना चाहिए, एक सोच होना चाहिए है कि मैं जो मेहनत करता हूं और जो मैं पॉजिटिव थिंकिंग करता हूं, ये दोनों वो हैं मेरी चीजें हैं जो कि अल्लाह ताला इसको सराहता है और पसंद करता है। अल्लाह ताला मेहनत करने वालों के साथ और पॉजिटिव थिंक करने वालों के साथ मौजूद है, हमेशा साथ है। और दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, तो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने कोई कमी नहीं रखी। अगर हम उसको एक्सप्लोर नहीं करें, मिसाल के तौर पे एक सैमसंग का आपने मोबाइल लिया, इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ उसके अंदर व्हाट्सएप करने के लिए या उसको कॉल्स करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें 1760 और फीचर्स हैं, ठीक है, और आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो आपको सैमसंग लेने का कोई फायदा नहीं हुआ, इट्स अ वेस्ट। द सेम थिंग हमें अशरफुल मखलूकात में, तो हमें अपने आप को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। डीएक्सन का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उसका मुआवजा मिलेगा, आपकी सोच से भी ज्यादा मिलेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कहोगे आपकी मेहनत का इतना मुआवजा मिलेगा कि आप हाथ जोड़ के डॉक्टर लिम को कहोगे, डॉक्टर लिम बस मैं तब ऐसा क्या करूं, तो आगे से डॉक्टर लिम कहेगा तुम ऐसे करो, प्रॉपर्टीज खरीद लो। तो बोले मैं प्रॉपर्टीज खरीद को क्या करूं? तो डॉक्टर लिम कहेगा आप इसको दान कर दो ना लोगों में, ठीक है। तो पैसे की जरूरत देखें हर किसी को है, या तो अपनी जात के लिए है या लोगों के लिए है, टू सर्व द ह्यूमैनिटी। मेरा मकसद जैसे है कि टू सर्व द ह्यूमैनिटी पे मैं कहती हूँ इंसान अपने ऊपर कितना खर्च कर सकता है, इंक्लूडिंग द लग्जरीज, बट देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू दैट नीड हेल्प। तो चाहे आप बिजनेसमैन है, चाहे एक आम आदमी है, पैसे की आप सबको जरूरत है। डीएक्सन बिजनेस में टाइम फ्रीडम है, आपको जो कन्वेंशनल बिजनेस में नहीं मिलती। डीएक्सन बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप अपनी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो पर्सनल चीजें हैं, आप अपने घर की ग्रोसरी को चेंज करते हैं, ठीक है, फॉर लॉन्गेविटी एंड गुड हेल्थ के लिए। वही चीज आप डुप्लीकेशन करते हैं बाय टेलिंग अदर्स ऑल्सो, क्योंकि जिस चीज ने आपको फायदा दिया, दीन भी ये कहता है कि अच्छी बात बताना सदका जारी है, तो आपको जिस चीज ने फायदा दिया उसको दूसरों के साथ आप शेयर करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव बिजनेस है, इसको हर बंदे को करना चाहिए। इट्स अ गुड लक बिजनेस एंड इट्स अ स्ट्रेस फ्री बिजनेस। बस इसका एसेंस जिसने जान दिया, जिसने इसको मास्टर कर लिया, जिसने इस पे अच्छी ट्रेनिंग ले ली, सीख ले ली अच्छी, वो कभी गलत नहीं जा सकता। और ये हलाल बिजनेस है, ये मेहनत का मुआवजा देने वाला बिजनेस है, हर मेहनती को इसका हक मिलता है इसमें। और ये
एक हेल्पिंग बिजनेस है, ये वो बिजनेस है जो कि आपके वालिदैन के लिए सदका जारिया होता है। क्योंकि जब आप किसी को हेल्थ सोल्यूशन बताते हैं, मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसको गैंग्रीन हो गया है, आपको मालूम है कि डीएक्सन के प्रोडक्ट्स के थ्रू आप उसका एम्पुटेशन जो है वो स्टॉप करवा सकते हैं, वो एक नॉर्मल जिंदगी पे आ सकता है, उसका डायबिटीज जो है वो क्योर हो सकता है अल्लाह ने चाहा तो आप उसको ये बताते हैं और उसका पांव कटने से बच जाता है तो आपको दुआ मिलेगी। जब आपको दुआ, क्या अमीर आदमी को, क्या बिजनेसमैन को दुआ की जरूरत नहीं है? क्या गरीब के लिए दुआ है? तो अगर आपको इसके अंदर दुआ मिलती है तो वो दुआ आपको भी मिलती है और आप अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया है तो इन टर्न आपके वालिदैन को भी मिलती है। तो इसको अजर के लिए कर लो, इसको दूसरी दुनिया में जब आपने यहां से निकल के जाना है तो उसके लिए कर लो। वहां के लिए क्या सामान है? ये पैसा काम नहीं आएगा, आपके अमाल काम आएंगे। यू सर्व द पीपल, यू हेल्प द पीपल, यू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, मेहनत करो। इससे डीएक्सन बिजनेस से, डीएक्सन की प्रोडक्ट्स में इतनी खूबी है कि आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करता है, फ्रॉम अ नेगेटिव पर्सनैलिटी टू अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी। राम भैया की मिसाल आपके सामने है। राम भैया एक आम आदमी थे, ठीक है, ही वॉज नॉट अ बिजनेसमैन, कुछ नहीं, राम भैया ऐसे ही है ना। मगर आज राम भैया जो है क्राउन डायमंड है, माशाल्लाह। इनका जो बोनस आता होगा इनकी मेहनत के ऊपर, तो अल्लाह ताला ने इनकी कितनी गुड लक बनाई। क्या वो अगर एड़ियां रगड़ते रहते और इस बिजनेस की तरफ नहीं आते, क्या ये मुमकिन था जिस स्टेटस पे ये आज हैं? ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो कर रहे हैं, जो खुद के लिए भी कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी, दूसरों के फायदा उठाने के लिए भी कर रहे हैं। तो इसको करें सिद्ध के दिल से। इंडीड इसमें फायदा है, सबके लिए फायदा है। इंडीड बेसिकली ये तो ऑब्वियस आप लोगों ने बिल्कुल एलाबोरेट कर दिया कि डीएक्सन इज अ ब्लेसिंग, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन बीइंग अपलाइन अगर है तो उनकी जो डाउनलाइन है, मुझे इसका स्पेसिफिक आंसर करिए। आप लोगों को अपनी डाउनलाइंस को फॉलो अप करने का आपकी बिजनेस में रिटर्न क्या मिला? राम भैया जिससे कि आपने अपनी टीम का ख्याल रखा, उनसे फॉलो अप किया, उनको टाइमली आंसर किया, उनके लिए खड़े रहे, उनको एजुकेट किया, इन सब चीजों ने जो है आपकी बिजनेस को क्या हेल्प किया? ओके, मेरे ख्याल में जो आज तक मैंने किया है मेरा ग्रुप में, मैंने जो चीज अपना अपलाइन से और दूसरा सक्सेसफुल लीडरों से जो सीखा है, मैंने हमेशा मैं ट्रेनिंग पर जाता हूँ और सेमिनार पर जाता हूँ और ऑनलाइन में जो सक्सेस स्टोरी सुनता हूँ, और जो चीजें सक्सेस पीपल करते हैं वो चीज हम लोग भी कर लेते हैं। जैसे कि हमेशा मैं एक चीज को बहुत भरोसा रखता हूं, अगर आपके पास एक एग्जाम्पल सेट है, एक उदाहरण है, तो वो उदाहरण हमारे टीम को देना चाहिए। हम कभी भी अपलाइन पर भरोसा नहीं रखते हैं कि अपलाइन मुझे सहायता करके मैं आगे बढ़ जाऊं, है ना। तो ये बिजनेस, डीएक्सन बिजनेस में जितना भी हम कर सकते हैं खुद को करना है और खुद डाउनलाइन को कर पाना है। हम लोगों को जो चीजें आप सीखते हैं वो चीज उन लोगों को सिखाना है। इसलिए हर व्यक्ति तो लीडर हो सकता है, हर व्यक्ति तो अपलाइन हो सकता है इस बिजनेस में, हर व्यक्ति, क्योंकि हर बंदा का नीचे पर बहुत बंदा लोग होता है। लेकिन कभी कभी हम लोगों को इस बिजनेस में, क्योंकि हमारे डीएक्सन में मैं ये बोल सकता हूं कि हमारा लो प्रोफाइल है, लेकिन हाई इनकम को कोई नहीं जानता। अभी दीदी ने बहुत सारे चीजें बताए हैं, ये चीज सब हाई इनकम की बातें हैं, हाई बेनिफिट की बातें हैं और लॉन्ग टाइम की बातें हैं। लेकिन इस चीजों को समझने के लिए हम लोगों को हमेशा मेहनत करना पड़ता है कि जो हम लोगों की डाउनलाइन को फॉलो अप करना, हम लोगों को हमेशा फॉलो अप करना है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, जब तक वो हम जैसे नहीं बनता है तब तक उसको फॉलो अप करना ही चाहिए।
जैसे कि मेरे डाउनलाइन में मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरे डाउनलाइन में अभी कम से कम 87 डायमंड्स है, 87 डायमंड्स। सो 87 डायमंड्स में 87 डायमंड्स में मैं हमेशा हर आदमी का नाम रिकॉर्ड करके इन लोगों को मैं हमेशा इन लोगों के जो हमारे ईओल में देखता है जो सेल, इन लोगों के सेल को देखकर हम कह सकता है कि तुम इतना अच्छा अफोर्ड नहीं कर रहे हो, इसको कॉपी कर पाना है और इनका मसला क्या है उसके बारे में समझाना है हम लोगों को हमेशा। अभी मेरे अंडर में ट्रिपल डायमंड है, डबल डायमंड है, बहुत सारे डायमंड्स हैं, तो भी आदमी लोग समझता है कि ट्रिपल डायमंड को फॉलो नहीं करना चाहिए, वो तो ट्रिपल डायमंड है ना, बोलता है ना। लेकिन हम लोगों को ट्रिपल डायमंड के ग्रुप को भी हम लोगों को फॉलो अप करना होगा। हमने जो अपना जो डाउनलाइन होता है ना, डाउनलाइन बोलता है तो हमारा बच्चा है, हमारा चिल्ड्रन है, इन लोगों का आपके पास जितना भी चिल्ड्रन हो इन लोगों को सबको स्कूल भेजना ही पड़ता है, इन लोगों को सिखाना ही पड़ता है। तो मेरा जो मकसद बनता है, मैं जानता हूं अभी तक मुझे इतना ज्यादा लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो भी मैं सुन सकता हूं और बोल सकता हूं। तो मेरा फॉलो अप ये है कि मैं नोटिस करके इन लोगों को नहीं दे सकता, तो मैं कुछ सीख कर इन लोगों को कुछ बोलकर सिखा सकता हूँ। तो मैंने यही काम किया है। मैं हमेशा मेरा काम जो है, अभी भी मैं क्राउन डायमंड बोलकर मैं आराम से नहीं बैठ रहा हूँ, आराम से घर में बैठकर नई बिजनेस कर रहा हूँ। मैं अभी भी फील्ड में जाता हूँ। अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हमें मलेशिया में थोड़ा सा फ्री है, तो अभी भी मैं फील्ड में जाता हूँ। अभी भी मैं प्रोडक्ट को जो डाउनलाइन लोग को होता है उन लोगों का काम होता है, इन लोगों का ड्यूटी होता है, तो इन लोगों के पास टाइम नहीं है खरीद करने के लिए, इन लोगों को मैं सर्विस करता हूँ। और जो लोगों के पास टाइम है उन लोगों को बोलता हूँ कि जैसे मैं कर रहा हूँ तो भी वैसे ही कर ले। एवरीथिंग इज कॉपी पेस्ट। या दिस इज द थिंग दैट वी कैन। या यानी कि डिएक्शन सिर्फ वो बंदा कर सकता है जो सुन सकता हो और बोल सकता हो। जी 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 जी, कोई नहीं कर सकता। ये बेसिक रिक्वायरमेंट आ गई, ज्यादा है। जो इंटरव्यू के लिए जाए, जो आदमी लोग नहीं बोलता है तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। हम लोग जो ज्यादा बोल लेता है ना, उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जिस दिन उसके पास समस्या आ जाता है ना, उसको याद आता है कि वो दिन वो चिल्ला रहा था, इसने ठीक बात किया था, तो वो वापस आ जा सकता है। वो एक्सपीरियंस हमारे पास है। लेकिन जब आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो ना, जब आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, अल्लाह ताला आपको सक्सेसफुल कर रहा हो, तो लोगों के कंसर्न, लोगों की बातें सुनना आपका काम नहीं है। आपको अल्लाह पाक कामयाबी उसी वक्त करता है जब आप सारे अपने अमल सही कर रहे होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। तो जब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं ना, तो बस बढ़ते रहें, डोंट केयर। मैडम डाउनलाइन जो है वो बच्चा है। जी 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 जी, बोलिए। सॉरी, मैं किसी बात को ख्याल नहीं करता। जो आदमी लोग मेरे को बोलता है कि तो अभी तक मलेशिया में क्यों बैठ रहा है, वो घर नहीं जाता है, तेरे को परिवार की याद नहीं आता है। अरे यार, दूसरा बिजनेस भी है, बहुत लोग प्रलोभन दिखाने वाला भी बहुत आता है, लेकिन मैं इस तरह ध्यान नहीं देता। मेरा एफर्ट जो है, जो चीज से मुझे बेनिफिट मिला है उसमें मैं बहुत विश्वास करता हूँ। डीएक्शन कंपनी के सिस्टम में मैं विश्वास करता हूँ। सिर्फ मेरा एफर्ट है डीएक्शन में, तो मैं किसी का बात नहीं सुनता हूँ। थैंक यू। सिंगल माइंडेड, यूं करके सिंगल माइंडेड, बिल्कुल यूं जी, डीएक्शन करते चलते हैं। मैडम, ऑनलाइन जो है वो आपका बच्चा है, ये भी राम बहादुर भाई ने कहा,
आपका डाउनलाइन आपका बच्चा है, तो अपने बच्चों के लिए क्या करती हैं आप? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली एक बात आपको मैं बताऊं, जो DXN बिजनेस है इसमें ये है कि कम से कम दिस इज लाइक अ बैम्बू शूट, ठीक है। बैम्बू का जो दरख्त पौधा होता है वो जमीन के ऊपर उस आने में जो है 5 से 6 साल लगते हैं। तो जो हमारी डाउनलाइंस भी जो है ना, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ अ बैम्बू शूट। क्यों, उसका ये मतलब नहीं है कि जो बैम्बू है आप उसको न्यूट्रिएंट्स जो दे रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, उसको खाद वाद डाल रहे हैं, तो उसका इफेक्ट नहीं हो रहा, नहीं, वो अपनी ग्राउंड स्ट्रॉन्ग कर रहा है और फिर 5-6 साल बाद वो शूट करता है ऑन द सॉइल के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से हमारी डाउनलाइंस भी हैं कि हमारी डाउनलाइंस जो हैं ये हमारे पौधे हैं, यही डाउनलाइंस हैं और हमारी डाउनलाइंस की डाउनलाइंस हैं जो क्योंकि दिस इज अ नेटवर्क बिजनेस, ये एक हेल्पिंग बिजनेस है और इसमें डुप्लीकेशन है, कॉपी कैट्स होते हैं, हम एक दूसरे की कॉपी करनी होती है। तो इसके अंदर अपलाइंस के लिए बहुत जरूरी होता है कि इनको सीख दी जाए डाउनलाइन को। तो ये जो 5 से 6 साल हैं या 4 से 5 साल हैं, ये अपलाइन और डाउनलाइन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप समझ लें, जैसे इन्होंने कहा राम भैया ने कि डाउनलाइन हमारा बच्चा है, तो बच्चे की 4 से 5 से 6 साल तक नशोनुमा करनी पड़ेगी, उसको उसी तरह से बैम्बू शूट की तरह खाद वगैरह डालनी पड़ेगी, जिस तरह से बैम्बू शूट को डालते हैं, तो इसी तरह से इनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। हम कंफर्ट जोन में नहीं जा सकते। अपलाइंस अगर कंफर्ट जोन में जाए तो उसका मतलब ये है कि जितनी हमारी डाउनलाइंस है वो बेसिकली हम एक लीडर नहीं है उनके, हम उनके लोडर्स हैं। तो हमें लोडर नहीं बनना, हमें लीडर बनना है। तो इसमें जरूरी है कि हम जिसको जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हेल्प आउट करते हैं, उसको लर्निंग देते हैं और इससे मोटिवेशन मिलती है और उसके बाद डाउनलाइंस काम करती है हमारी। तो अब जैसे प्रोमो निकाला था, DXN ने जो प्रोमो निकाला था इन मई, तो उसमें ये था कि बहुत सारे मेरे जो डाउनलाइंस हैं मैंने उसको उसमें मोटिवेशन दी थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल इसके अंदर ये उठ रहा था कि DXN के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, हम कैसे करेंगे। पाकिस्तान में भी ये था और जाहिर है कोई भी कंपनी होगी वो अपने प्राइसेस तो इंक्रीज करेगी अकॉर्डिंग टू द सेल्स एंड डिमांड्स एंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स, ठीक है ना। बट उस प्राइस को एक्सेप्ट करके काम करना, ये मोटिवेशन जो है ये डाउनलाइन को अपलाइन से मिलना बहुत जरूरी है, अदरवाइज डाउनलाइन है वो कोलैप्स हो जाएंगी। दूसरी चीज ये है कि ये जो प्रोमो हुआ था इसके अंदर दिस वाज अ वंडरफुल प्रोमो फॉर द होल वर्ल्ड, फॉर ओवर 180 कंट्रीज जहां पे DXN मौजूद है। तो जहां जहां ये प्रोमो हुआ और जिन्होंने इसका फायदा उठाया, देखें बात यही हो जाती है कि व्हेन यू गेटिंग अ 10%, मैंने अपनी डाउनलाइंस पे ये समझा, जब आपको उस पर 10% डिस्काउंट मिलता है ओवर अ कैश बिल ऑफ 100 पॉइंट्स, तो आप ये समझ लो कि अगर आपको ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट तो मिल गया ना, तो मोर और लेस उसकी प्राइस आपको 6 मंथ टू अ ईयर जैसे आप लोग मोहलत चाह रहे थे, तो आपको उतनी बढ़ी हुई नहीं मिलेगी। तो lots of people in my downline they took this advantage और अल्हम्दुलिल्लाह with the efforts of my downline and with them unitedly हमने इस प्रोमो में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड काफी हमारी इस पे जो सर्विस सेंटर्स को भी सेल मिली और साथ साथ जो है वो जो है हमारे बोनसेस भी अच्छे आए और इसमें हमें फायदा हुआ। तो ये चीजें डाउनलाइंस के जो हम जितने प्रॉब्लम्स जो हैं उनको रिजॉल्व करेंगे, उनको हेल्पिंग हैंड देंगे, क्योंकि देखिए 2 प्रॉब्लम्स डाउनलाइन में बहुत कॉमन है। एक ये कि भाई हमसे कोई प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार नहीं होता, उसको प्रोडक्ट हम समझा नहीं पाते या हमारे साथ कोई ज्वाइन नहीं करता। वजह क्या है कि आपको अभी इतने स्किल्स नहीं मालूम है। यू नीड टू लर्न दो स्किल्स, यू नीड टू टेक द ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स वगैरह। आप Q&A सेशंस रखें अपने अपलाइन के साथ, और यही चीजें मैं अपने सर्विस सेंटर्स में करती हूँ। जब मैं वहां पे जाती हूँ तो मैं ये करती हूँ कि भाई तुम्हारा काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो जो सवाल रखते हैं कि तुमने किसी बंदे के साथ किस तरह से डीलिंग की है, जरा वो तो बताओ मुझे एज अ कस्टमर बन के, और वो बन रहे होते हैं कि वो मुझे जो है समझा रहे हैं DXN का। तो where they are wrong, I am teaching them, I am guiding them. That sort of a workshop is very important.
तो टुगेदर विद द डाउनलाइन एंड अपलाइन वी कैन प्रमोट आवर बिजनेस वेरी वेल। इसमें सबको मिलेगा, मगर यूनाइटेडली एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। जहां चेंज की जरूरत है, जैसे अभी कोविड-19 का मसला है, तो ये सबको हिला के रख दिया है, डीएक्सएनर्स एंड नॉन डीएक्सएनर्स सबको हिला के रख दिया है। एंड हम सब इसी में है कि क्या स्ट्रैटेजीज करें, क्या चेंज लाएं कि जिससे हमारे बिजनेस जो है वो ग्रो करे। और इसमें आप देखें डॉक्टर लिम ने भी, जो पूरी दुनिया में घूमते थे, वो भी बेचारे अपने, वो भी ग्राउंड हो गए और उन्होंने भी फेसबुक का सहारा लिया, सोशल मीडिया का सहारा लिया और उन्होंने इसको रन किया इस तरह से, पॉजिटिवली हमें वो किया। जब वो कर रहे हैं, जब वो ये सारी चीजें कर रहे हैं और साथ में अपलाइंस भी कर रहे हैं, लीडर्स भी कर रहे हैं, तो इसमें दम है। डाउनलाइंस को भी चाहिए कि सोशल मीडिया का सहारा लें, इससे करें। जहां प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो नीड हेल्प, द अपलाइंस आर देयर टू हेल्प यू। मगर डीएक्सएन बिजनेस को छोड़े नहीं। डिफिकल्टीज देखें, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, प्लस माइनस होता है। वो बात ही क्या कि हम उसको एड्रेस ना करें। ये तो हेल्पिंग बिजनेस है, यूनाइटेडली आप अकेले फाइट नहीं कर रहे। तो बहुत सारे लोग जो ना डीएक्सएन ज्वाइन करते हैं डाउनलाइन में, बट दे आर नॉट वर्किंग। बस वो उनके साथ यही होता है कि हमें नहीं आता है, बिकॉज एक नेगेटिव थिंकिंग हो। जब डीएक्सएन में स्टेप किया तो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करें और आपको अपने ऊपर भरोसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बिलीव होना चाहिए, बिलीव। अच्छा, बेसिकली इस यूनिवर्स के अंदर, इस पूरे कायनात के अंदर, इस जमीन पर, इस अर्थ पर, इस प्लेनेट पर कोई ऐसी साइंस नहीं है, कोई साइंस नहीं है ऐसी जो बंदा ये बोले कि यार मैं ये काम करना चाह रहा था और मुझे इस सिस्टम ने या इस चीज ने मुझे रोक दिया और मैं आगे नहीं बढ़ सका। एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमसेल्फ और फॉर हर सेल्फ। आप तो अपने आप के जिम्मेदार तो खुद तो हैं, और आप लोग दोनों बिजनेस कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी हैं। माशाल्लाह, राम भैया भी अच्छा कमा रहे हैं। राम भैया अच्छा कमा रहे हैं ना? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दाल रोटी चल रही है सिर्फ, या कुछ और भी चल रहा है? दाल रोटी से ज्यादा दाल रोटी चल रहा है। जबरदस्त। और मैडम देखें, एक सर्विस सेंटर से 2 सर्विस सेंटर पे आ गई। तो बेसिकली देयर इज नो एनी शेडो ऑफ डाउट दैट हमारी प्रोडक्ट्स और हमारी मार्केटिंग प्लान बड़ी जबरदस्त है। मैं 2 दिन पहले एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। आई जस्ट वेंट टू माई काउंटर। सिर्फ मैं काउंटर पे किया, एक साहब प्रोडक्ट खरीद रहे थे। आई जस्ट आस्क्ड कि आप ये प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे हैं? मैंने उनसे सवाल किया कि आप ये प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे हैं? वो ऋषि खरीद रहे थे और उसके साथ उन्होंने लायंसमैन लिया था। उन्होंने ये मुझे बताया कि बेसिकली मेरे जो भाई हैं, सगे भाई हैं, उन्होंने कराची के 2 सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स के नाम बताए। कह रहे मैंने अपने भाई को यहाँ भी रखा, नो आउटकम्स, कुछ नहीं हुआ। मैं यहाँ भी लेके गया, नो आउटकम्स। मुझे इस प्रोडक्ट का किसी ने बताया और असर कर रही है, लेकिन अगर मेरा भाई सही हो गया, उसने बताया कि अगर मेरा भाई सही हो गया, मैं अपने पूरे शहर के अंदर डीएक्सएन करूंगा। ये उसने सिर्फ मेरे एक सवाल पे उसके ये आंसर्स थे कि ये सब सारी चीजें खुद ही बताई। तो ये है डीएक्सएन की हैसियत, डीएक्सएन की वर्थ ये है। उस बंदे को सिर्फ मैंने नॉक किया और बंदे ने इतना सारा कुछ बाहर निकाल दिया कि यहाँ से भी कुछ नहीं हुआ, वहां से भी कुछ नहीं हुआ। तो ये तो हमें एक बड़ा कंपेटिटिव एज हमारे पास है। आप लोगों के साथ मुझे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। बेसिकली मैं भी सीख रहा हूँ, बट ये है कि मैं डीएक्सएन कर नहीं सकता, लेकिन आप लोगों की बातें सुन के बहुत सारे लोग डीएक्सएन अच्छा कर सकते हैं। सबसे काम की बात यह है, जो राम भैया ने बार बार बोला है, डिपेंड नहीं करें अपने आप को कभी। सही है, अपलाइन का फर्ज है बताना, बच्चे की तरह लेके चलना सही है, लेकिन राम भैया ने उससे पहले एक बात क्या करी, नहीं कर रहे फिर भी जिम्मेदारी आपकी, बढ़ना आप नहीं है। इन्होंने ये बात, इस पे इन्होंने ज्यादा एम्फेसाइज किया है पहले। उसके बाद इन्होंने मेरे सवाल करने पे बताया है, जब मैंने डाउनलाइन को स्पेसिफिक किया तो उन्होंने मुझे बोला है वो डाउनलाइन भी आपके बच्चे की तरह है। तो देखें, इनके आगे बढ़ने की वजह पहला क्या है कि इनका माइंड क्लियर है, नोबडी कैन स्टॉप मी। तो ये बढ़ते जा रहे हैं। और मैडम आपकी इंस्पिरेशन इतनी स्ट्रांग है, नोबडी कैन शेक यू। तो ये बेसिकली डीएक्सएन की खूबसूरती है, और हमें डीएक्सएन में बड़े अच्छे अच्छे लोग दे दिए हैं। और माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी जो है बड़े कमिटेड लोग हैं। आजकल चल रही है, काफी चल रही है आजकल कि ये कर दें, जल्दी कर दें, दिस एंड दैट। बट कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू,
कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट डू आई बिलीव, मैं ये समझता हूं कि हमारे पास सबसे ज्यादा कमिटेड लीडर्स हैं। इतने प्रॉब्लम्स के बाद, इतनी शॉर्टेज के बाद, किसी ने सिस्टम को नहीं छोड़ा, सिस्टम से नहीं हटे, एतराजात हैं, इख्तलाफात हैं, कंसर्न्स हैं, बट लोग खड़े हुए हैं। तो आप लोग इस सेशन के बाद इंशाल्लाह को बहुत हेल्प मिलेगी। और ये बताइए कि 10 साल बाद, और मैडम आपको आई थिंक 7 साल हो गए आपको? जी 2016 में स्टार्ट किया मैंने। 2016, आपको हो गया ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, 4 साल तो 5वां साल। तो व्हाट इज योर सीक्रेट फॉर्मूला फॉर दी डूअर्स? करने वालों के लिए आपका क्या एक बड़ा कंसाइज और प्रिसाइज एक्शन करने के सीक्रेट फॉर्मूला क्या है, जो मतलब थंपिंग लाइन हो, यार ये कर लो हो जाएगा? आप दोनों मुझे बताइए। पहले राम भाई पहले आप बताइए, लेडीज फर्स्ट। हाँ जी। ओके ओके ओके, देखिए बात ये है, आपने दिए यहाँ से कुछ हासिल करना है, ठीक है? और जब आपको कुछ हासिल करना है तो वो उसका जरिया सिर्फ ये है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें, मेहनत करें और अल्लाह पे भरोसा रखें। देखें, डीएक्सन आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है। आपको आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, वन ड्रैगन कंपनी है, जो सर्टिफिकेशंस आपको चाहिए, जो इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। आप किसी भी जो है आप विजिट भी कर सकते हैं कंपनी को, हर चीज ट्रांसपेरेंट है इसमें, ठीक है? ये बहुत बड़ी बात है कि ट्रांसपेरेंसी होना। दूसरी बात ये कि देखें, अपने आप को आपको चेंज करना पड़ेगा। आपके अंदर ये ना कहें कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, होता है। बिकॉज जिंदगी में कोई इंसान फेलियर नहीं है जब तक वो अपने आप को खुद प्रोनाउंस नहीं करे। अल्लाह ने किसी को फेलियर नहीं पैदा किया। जब एक अपाहज जो है वो माउंट एवरेस्ट तक जो है वो चढ़ सकती है, जिसके दोनों पांव कट गए, ठीक है? तो कैसे? इसका मतलब यही है ना कि उसकी एक पॉजिटिव थिंकिंग है, उसको अपने ऊपर बिलीव है। तो जब इंसान एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ता है और अच्छाई की तरफ बढ़ता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है, ठीक है? जहां आपको प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज अपने अपलाइंस से आप उसको डिस्कस करें। आपको मुझसे हेल्प चाहिए, आई एम देयर टू हेल्प यू एनीवेयर इन पाकिस्तान, यू कैन हैव माय नंबर। आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं इस पे, चाहे वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नेटवर्किंग की हेल्प चाहिए है कि किस तरह से करना है। कोई प्रॉब्लम्स हैं, Q&A करना चाहते हैं, आप बिल्कुल मेरे साथ कर सकते हैं। और आपको देखिए, हर चीज जो है डीएक्सन की प्रोडक्ट्स वंडर है। आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी बंदे के ऊपर बहुत सारी प्रोडक्ट्स थोपते हैं, नहीं। एक प्रोडक्ट पे काम करते हो, एक पे करो, दो पे करते हो, दो पे करो। आप जितनी इस्तिताअत है अपनी इस्तिताअत के हिसाब से काम करो, अपने बजट के हिसाब से काम करो, ठीक है? आप एक पैकेट ले लेते हो कॉफी का, उस कॉफी के पैकेट के ऊपर आप बहुत ज्यादा बेनिफिट्स उठा सकते हैं। आप इंडिविजुअल उसके अंदर से साशेस भी आप सेल कर सकते हैं। आप सोप्स हैं, आप एक बंदा कहता है कि मैं सोप बहुत महंगा है डीएक्सन का, भाई ये 740 का शायद एक सोप हो गया है न्यू रेट पे ना, तो 740 का ये सोप है। अब जी ये तो बहुत महंगा सोप है। आप इसके बेनिफिट्स आप उसके बताएं। आप वो कहता पूरा नहीं लेता, आधा दे दो, आधा नहीं देता क्वार्टर दे दो। जब वो क्वार्टर भी इस्तेमाल करेगा तो उसके इस्तेमाल करने से उसको बेनिफिट्स पता लगेंगे उसको। तो प्रोडक्ट जब तक इस्तेमाल नहीं करोगे उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और वो इंशाल्लाह वो जरूर आएगा। आज उसने क्वार्टर लिया है, कल आधा लेगा और फिर अगले दिन वो पूरा भी लेगा। तो दिस इज हाउ इट इज। थोड़ी बंदे की, हर बंदे को उसकी साइकी के हिसाब से चलाना है। एक ट्रैक पे नहीं आप चला सकते कि भाई ये लाइंस है सब इसी के ऊपर चलेंगे, नहीं। हर बंदा एक अपनी इस्तिताअत के हिसाब से चलता है। बंदा अगर प्रोस्पेक्टिंग पे वीक है, आप वो मीटिंग कर लें, आप उसके साथ मीटिंग करवा लें, आप वो अपने प्रोस्पेक्ट को लेकर आ जाए, उसको मोटिवेशन मिल सकती है। तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं अगर आप मेहनत करने के लिए और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए और
अपने अंदर चेंज लाने के लिए तैयार है तो मैडम आपने माशाल्लाह प्रोडक्ट्स आपको यूज ये जो प्रोडक्ट्स यूज करें। यस मैडम, बेसिकली ये जो आपने एक पॉइंट बताया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एक्सीलेंट पॉइंट दैट यू हैव रेज़्ड हियर के अगर आपने काम करना आपने आपको अपने काम को कस्टमाइज करना पड़ेगा। दैट इज वेरी गुड पॉइंट। राम भैया, बड़ा कंसाइज और प्रिसाइज सीक्रेट फॉर्मूला क्या है डिएक्शन करने वालों के लिए? आप इतने एक्सपीरियंस डिएक्शन में लेने के बाद कहाँ पहुंचे हैं अभी आप? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर। एक्चुअली इसमें डिएक्शन बिजनेस हम लोग मेरी तरफ से पता नहीं सब लोगों का दिल में ऐसा होता है कि नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से मैं सोचता हूं कि इसमें कोई चीज ऐसा गोप्य चीज नहीं है, जो सीक्रेट चीज नहीं है, जो हम लोगों को सीक्रेट तरीका से करना चाहिए। जो डिएक्शन जो लोग करता है, डिएक्शन में अंडरस्टैंडिंग करता है, हम लोग सिखाता है। हम लोग शुरुआत क्या होता है कि शुरुआत जो सिखाता है उसमें पॉजिटिव सेंस होता है। ओके, सो इफ देयर इज अ पॉजिटिव सेंस देन देयर इज नो सीक्रेट थिंग्स टू लर्न, यू नो, एंड दैट्स वे ऑलवेज आई एम व्हेन मैं जब भी ये लीडरशिप ट्रेनिंग देता हूँ ना, मैं दीदी भी एक दिन मेरा लीडरशिप ट्रेनिंग में आया हुआ था जोहरबार में, बहुत खुशी लगा। और मैं हमेशा ग्रुप को ऐसा बोलता हूं कि कभी कभी ये मेरा ग्रुप नहीं है, वो मेरा ग्रुप नहीं है, सिर्फ मैं मेरा ग्रुप को सिखाता हूं बोलता है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है इन लोगों के लिए, ये है कि आखिर तुम सिर्फ अपना ग्रुप को क्या सिखाएंगे यार? क्या सीक्रेट बात है जो अपने ही लिए सिखाता है? हम लोगों को तो ये तो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी तो जो भी जा सकता है, जिसको भी सिखा सकता है कि नहीं? तो मुझे लगता है इसमें कोई सीक्रेट चीज नहीं है। जो चीज है हम लोग सिखा रहे हैं, जो चीज है दातो डॉक्टर लिम शेओजिन ने हम लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना के दे दिया है। हम लोगों को अभी सिस्टम ढूंढने का इतना टाइम को बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों को सब कुछ मिला है। जैसे अभी दीदी ने बोला है अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है और फिर भी क्यों क्या ढूंढने जाएंगे, है कि नहीं? सब कुछ तो रेडी है, लेकिन आपको अभी क्या करना है चाहिए कि हमारे पास अभी हमारा सर जी ने भी बोला था कि डिएक्शन कंपनी वन ड्रैगन कंपनी है, एवरीथिंग डन बाय डिएक्शन। Then why you are thinking about डिएक्शन प्रोडक्ट, this and that, this have or not, ये है कि नहीं है, वो है कि नहीं है, ये क्या करेगा? क्यों बर्बाद करते हैं अपने टाइम को? दातो डॉक्टर लिम शेओजिन ने कितना साल लगा के इतना अच्छा प्रोडक्ट बना दिया है। हम लोगों को सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है, प्रोडक्ट को लेना है और इस्तेमाल करना है, सेहत को अच्छा बनाना है, और वो अच्छा बेनिफिट का बात जो है हम लोगों शेयरिंग करना है हम लोगों का। इसलिए तो मैं बताता हूँ, जो लोगों का एजुकेशन है, जो लोगों का पैसा है, तो जो कुछ भी आपके पास हो, लेकिन करने का एक ही चीज है डिएक्शन में सब लोगों को, यूज द प्रोडक्ट, टेल द स्टोरी। और 20 years बिफोर, 27 साल पहले से ही दातो डॉक्टर लिम शेओजिन ने सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, सिर्फ मलेशिया के लिए नहीं, सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, उन्होंने दिया है कि वन वर्ल्ड वन मार्केट के हिसाब से उन्होंने संदेश दिया है कि प्रिवेंटेशन इज बेटर देन क्योर। You know, then prevention, when Dato Dr. Lim Sheojin say prevention is better than cure, ये 3 शब्दों में सब कुछ है। आपको प्रिवेंटेशन करना है तो प्रोडक्ट लेना है, अगर प्रोडक्ट लेना है तो आप सिस्टमेटिक लेना है एज अ मेंबर, है कि नहीं? तो वो प्रोडक्ट आप फेंकेगा नहीं, आप खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो हेल्थ बेनिफिट मिल जाएगा। जब आपने प्रोडक्ट लिए है तो आपको पॉइंट वैल्यू मिलेगा, सेल वैल्यू मिलेगा, इनकम आएगा, है कि नहीं?
So we don't have so many things, secret things that we have to learn. This is freedom business. Then मेरा सजेशन ये है कि सब लोगों को जैसे डॉक्टर लिंसेओ ने पॉजिटिव सेंस का एक सिस्टम इकट्ठा करके हम लोगों को जीवन बनाने का एक मकसद बना दिया है, उसको सिस्टमेटिकली ईमानदारी से निभाना है। यही चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ मैं। There is no secret things. Yeah, excellent. Yes, just share, give, and be focused. yes, definitely. There is nothing is keep inside. You know, we just talk to the people. What do you know? If you have experience, you just effort to the others. Then you will learn another new knowledge. Yeah, that is things what I learned. Yeah, and what I'm doing until today. Yeah, आज तक मैं यही कर रहा हूँ जी। बेसिकली बिल्कुल थोड़ा एक बड़ा प्रिसाइज आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। बड़े आप लोग फर्म है भाई, शेक ही नहीं है। नो वो कहते हैं ना, अपना कहीं से कोई स्टेटमेंट ला के इम्पोज कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बी सिंपल, बी फोकस, बी ऑनेस्ट, जस्ट डू। ये कर लें, इतना ही कर लें और कामयाब हैं। ये आज हमने प्रोग्राम से निकाला। इट वाज अ नाइस सेशन, बेसिकली बहुत अच्छा सेशन है। मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। आई एम नॉट बेसिकली, अभी मेरा एक सेशन है और वो सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द टॉपिक इज स्टार्टेड इट राइट, यानी कि शुरू कैसे करना है, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट मैं टाइम भी देख रहा हूँ, लेकिन अब मैं चले जा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे मजा आ रहा है, यहाँ के लोग भी हमारे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन ये है कि ख्याल रखना पड़ेगा ना, वरना फिर नेक्स्ट टाइम हमारा प्रोग्राम ही रखेंगे, ये लोग बोलेंगे नो प्रोग्राम। सही है। आप लोग दोनों इस तरीके से अपना काम करते रहे, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। और इन द एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये जो आपने बार बार एक बात बोली है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यस, ऑनेस्टी इज द बेस्टेस्ट पॉलिसी दैट वी कैन अडॉप्ट, देन वी कैन बी सक्सेसफुल। तो थैंक यू सो मच मैडम तहसीन बोम्बल जी एंड मिस्टर राम बहादुर तमंग जी। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। बट आखिर में मुझे राम बहादुर भाई ये बता दिए, मैंने अभी नोट किया है, इस प्रोग्राम के दौरान आपने ऋषि भी इस्तेमाल किया है, आपने कोई टैबलेट्स भी ली हैं, आपने 2 तरह की कॉफी पी है। जरा इसको इलाबोरेट करते हैं, इसको जरा एक्सप्लेन करें। जी सर। नहीं, हाँ, प्रोग्राम के दौरान आपने ऋषि भी इस्तेमाल किया, टैबलेट भी इस्तेमाल करी, कॉफी भी यूज करी आपने। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, आपने क्या क्या किया थी इतने 1 घंटे के टेन्योर में। या एक्चुअली ये प्रोडक्ट के दौरान में मैं अभी DXN का जो जगह से DXN शुरुआत हुआ है, जो जगह में DXN का कंपनी है, जो जगह में 100% DXN का प्रोडक्ट मिलता है, वही जगह में मैं हूँ। और मैं अल्लाह को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो जगह में मैं रहा हूँ अभी। तो मैं 100% प्रोडक्ट को यूज कर लेता हूँ। आप मेरा फेसबुक पे जा सकते हैं, फेसबुक में देख सकते हैं कि जब भी नया प्रोडक्ट आ जाते हैं, सबसे पहले मेरे को लेने की मन करता है। ये मेरा ख्वाहिश है। तो मैं जितना प्रोडक्ट DXN के अंदर में है, कॉस्मेटिक और हेल्थी प्रोडक्ट एंड हाउसहोल्ड प्रोडक्ट, एवरीथिंग मैंने यूज किया है, एवरीथिंग मैंने खाया है, एवरीथिंग मैंने पिया है। We have more than 16 kind of coffee in DXN, more than 16 kind of coffee. All coffee I drink. Yeah, every coffee I drink. You can see behind me, I have a lot of coffee with me. You know, without coffee, I cannot stay. And the DXN RGGL, the RGGL is my daily doses is 4 पेयर। मैं 4 RG 4 GL खाता था पहले। तो जब कोरोना वायरस आ गया तो मैंने इंक्रीज कर दिया कि मैं अभी 15 RG 15 GL खाता हूँ और 20 स्पारुलिना एंड
मैं अपना टेबल में रख लेता हूँ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मेरे साथ में है। ये मैं 15 RGGL खाता हूँ, और जो कोर्डिसेप्स है, मैं कोर्डिसेप्स को सुबह को 3 और शाम को 3 खा लेता हूँ। और जो एंड्रोजी है, अभी मेरे पास ये एंड्रोजी है, मैं इस एंड्रोजी को हर शाम को 2 कैप्सूल खाता हूँ। और मेरे पास स्पारोलिना है, मैंने इसको बता चुका है कि मैं 10 सुबह को 10 शाम को स्पारोलिना खाता हूँ। और कॉफी तो हमारे हर दिन में बहुत बार चलता है ना। और कोडिबॉन जूस है, देखिए हमारे पास। और आई हैव एवरीथिंग। डीएक्सन के प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या खाया है मत पूछना आप लोग, मेरे को पूछना है तो वो प्रोडक्ट का टेस्ट कैसा होता है वो पूछ सकता है, क्योंकि मैंने सब प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है, सबको खाया है, सबको पिया है, तो मुझे सबका टेस्ट पता है। दैट यू नो, इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि डीएक्सन के प्रोडक्ट में हम कभी कंजूस नहीं करेंगे। अगर आप डीएक्सन के प्रोडक्ट पर कंजूस करेंगे ना, आप अपना सेहत पर इतना प्यार नहीं करता, अपना जिंदगी का इतना प्यार नहीं करता, है ना। तो जब आपने डीएक्सन का प्रोडक्ट 100% इस्तेमाल किया होता तो आपने ये एक पेरेंट बता सकता है ना डीएक्सन का प्रोडक्ट का। तो हमारे स्कूल डीएक्सन यूनिवर्सिटी में यही पढ़ लेते हैं हम लोग, खा के पी के और इस्तेमाल कर पेरेंट। तो इसके बेनिफिट के बारे में तो हम लोग शेयरिंग करते हैं बाहर में, बाजार में, है कि नहीं। तो जो आदमी लोग विश्वास करेंगे उस लोगों के लिए हम लोग दिखा के खा सकते हैं। और ये डीएक्सन का प्रोडक्ट जो है औषधि नहीं है, ये दवा नहीं है, इसको हम लोग हेल्थ केयर प्रोडक्ट बोलता है। ये प्रोडक्ट खा के हमारा हेल्थ को, सेहत को बहुत अच्छा काम करता है। तो इसको अच्छा तरह से एक्सप्लेन करना है तो 3 घंटे लग जाएगा सर, तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ। थैंक यू। नहीं, वो हमारे एक साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, उनका नाम है मिस्टर आशीष। मिस्टर आशीष ये बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट खाता है तो प्रोडक्ट बोलता है। तो जब अभी आप बोल लेते ना तो ऐसा लग रहा था कि प्रोडक्ट बोल रहा है। वही प्रोडक्ट का भाषा था। चले, ये बात तो बिल्कुल फॉर श्योर है। लाइक आईफोन, जिस तरीके से सेलफोन के अंदर आईफोन एक किंग है, फूड सप्लीमेंट के अंदर और हेल्थ केयर प्रोडक्ट के अंदर हम किंग हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। बस अल्लाह पाक हम सबको इस्तिकामत के साथ काम करने की, अच्छे टेम्परामेंट के साथ काम करने की बहुत ज्यादा हिदायत दे, और एक दूसरे की हेल्प करने की हिदायत दे कि हम एक दूसरे की हेल्प करें और बढ़ते रहें आगे। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर 25 साल गुजार दिए तो मेरे पास 25 साल और है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 25 डेज हो, तो टाइम का कुछ पता नहीं है। बट ये है कि अपना कोई ट्रेडमार्क ऐसा बना ले कि जाने के बाद लोग बोले नहीं अच्छा नहीं तो बोले सही तो बोले, एटलीस्ट ये बंदा सही था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच आप दोनों का। आपको अपना ख्याल रखिए आप लोग। इंशाल्लाह फिर आप लोग से दोबारा हम एक सेशन करेंगे और बड़ा एक इससे भी अच्छा और इससे भी दमदार करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मसीह भाई, वेलकम एंड थैंक यू राम भैया फॉर बीइंग इन दिस सेशन विद मी। बहुत खुशी लगा, थैंक यू। बहुत मजा आया। पाकिस्तान, वी मस्ट मीट अगेन प्लेजर इज माइन इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। आप अपना ख्याल रखिए।